हेलो एवरीवन, तो वेलकम टू माय चैनल। आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, दैट इज पीएनसी मींस परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन। तो परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन के पीवाईक्यूज हम लोग डिस्कस करेंगे बीइंग आस्क्ड इन दी सीसैट। दिस इज पार्ट 1। सो इट्स एन इंपॉर्टेंट टॉपिक, काफ़ी क्वेश्चंस आते हैं हर साल, तो इसलिए दो पार्ट्स में हम इसको डिस्कस करने वाले हैं। ऑफ द पास्ट 5 years 2020 to 2024 we will go backwards, we will start from 24, and I have already made videos on different topics of CSAT. You can watch those. A brief about myself: I have written SSC CGL 2017, got a rank of 60, and I was posted as a AAO in CAG. I worked there for 1.5 years. Also, I secured 96.5 percentile in CAT and All India rank of 3rd in UGC Net Commerce, December 2018. Now we will start. So first we'll go backwards. As I told you, let's see this question being asked in 2023. So 2023 का paper, it was one of the most difficult paper, as you all know. Now this question, Raj has 10 pairs of red, 9 pairs of white and 8 pairs of black shoes in a box. So 10 pairs of red shoes, he has 9 pairs of white shoes, and he has 8 pairs of black shoes. And if you count them in number of units, 20 units into 2 कर देंगे, 18 and 16. Now if you randomly pick shoes one by one without replacement from the box to get a pair, what is the maximum number of attempts he has to make? अब उसको अगर एक रेड पेयर चाहिए तो मैक्सिमम पूछा है आपसे, मैक्सिमम अटेम्प्ट कितने करने पड़ेंगे। मैक्सिमम मतलब टेक दी वर्स्ट केस सिनेरियो। वर्स्ट केस सिनेरियो वुड मीन कि वो सारे के सारे अगर व्हाइट और ब्लैक शूज पहले पिक कर ले। देखो व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ शूज, 20 plus 18 plus 16, 54 is the total number. Now worst case would be कि पहले वो ये सारे 18 plus 16, 34 सारे के सारे white और black pick कर ले, that would be the maximum number. उसके बाद 35th and 36th shoe has to be red, ठीक है। So basically maximum is the 36 attempts he have to make to get a red shoe pair, ठीक है। आगे चलेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन, इन हाउ मेनी वेज कैन अ बैट्समैन स्कोर एग्जैक्टली 25 रन्स बाय स्कोरिंग सिंगल, फोर्स एंड सिक्सेस। तो इसको आप एक इक्वेशन में लिख सकते हैं कि फॉर एग्जांपल हाउ मेनी सिंगल्स, x सिंगल्स, बट हाउ मेनी फोर्स, y फोर्स, एंड हाउ मेनी सिक्सेस, z सिक्सेस, दिस टोटल शुड बी 25. Now the biggest run is the 6 which he can score. So we can start with it, as in, what do I mean by that? We can start with it means, like let's suppose if z is equal to 0, let's say if it does not hit any 6, then what will be the equation will become x plus 4y is equal to 25. Now look for different values of x and y, like for example if x is 1, y could be 6. Okay, like this you can think of it, or you can start with y, like if y is 1, then x would be 21. Like this, look for the different pairs, so you will be able to make 7 pairs, 7 such values. Okay, then next, if z is equal to 1, if he hits only 1 6, so you deduct this 6 into 1 6 from this 25, so your equation will be x plus 4y is equal to 19. Why 19? Because from this 25 you deduct 6z, z is 1, so you deduct 6, you'll get 19. This will be the equation. Now again, look for different values of x and y which will satisfy this equation. Like for example, if y would be 1, then x would be 15. Like this, if y would be 2, then x could be 11. Okay, so like this you can find out, let's find out, if y is equal to 3, then x will be 7. If y is equal to 4, then x would be 3. So these are the values. So yeah, there we got 7 pairs, here we are getting 4 pairs of values, basically 4 different values, 4 different ways. Now if z is equal to 2, if he hits 2 sixes, then what will be our initial equation become? See, if z is so if this is the initial equation, and if z is equal to 2, so this becomes x plus 4y plus 12 is equal to 25. So x plus 4y is equal to 13. It will be the new equation. And if you notice a pattern, I don't know if you have noticed this pattern, let me tell you what pattern I am talking about, that this is remaining the same, this parts remain the same, and this value is reducing by 6 every time because we are adding the value of z एवरी टाइम, ठीक है। तो यहाँ पे भी आप देख सकते हैं क्या क्या वैल्यू सब्सिट्यूट, लाइक y अगर 1 होगा
तो x की वैल्यू 9 हो सकती है। सिमिलरली अगर y2 होगा देन x की वैल्यू 5 हो सकती है, और अगर y3 होगा तो x की वैल्यू 1। तो यहाँ पे आपको 3 पेयर्स ऑफ वैल्यूज मिल जाएंगे। इस तरीके से हम काउंट कर सकते हैं, ठीक है। देन इफ z इज इक्वल टू 2 ले लिया हमने, इफ z इज इक्वल टू 3 तो आपकी इक्वेशन बन जाएगी x प्लस 4y इज इक्वल टू 7। तो यहाँ पे क्या वैल्यू होगी, अच्छा यहाँ पे हम जीरोस भी तो ले सकते हैं, हमने जीरोस की वैल्यूज को भी लेकर हम लोग चल सकते हैं कि x 0 है या y 0 है। लाइक फॉर एग्जांपल इफ y इज 0 देन x कुड बी 13। तो जीरो वाला केस भी आप यहां पर लेके जरूर चलेंगे, ठीक है ना, बिकॉज वो भी एक इंटीग्रल वैल्यू है, तो यहाँ पे 4 हो जाएगा। सिमिलरली अगर यहाँ पे आप देखोगे तो अगर y 0 है तो x 19 हो सकता है। सो दिस इज ऑल्सो अ वैल्यू, इसको भी आप लेकर चलेंगे, ठीक है। अब z 3 है तो x प्लस 4y इज इक्वल टू 7, तो यहाँ पर x 3 हो सकता है, y 1 हो सकता है, और अगर y 0 है तो 7 0। तो यहाँ पे हमें दो पेयर ऑफ वैल्यूज मिल जाएंगे। और अगर z इज इक्वल टू 4 होगा तो इक्वेशन बन जाएगी x प्लस 4y इज इक्वल टू 1। ये आप चेक कर सकते हैं, तो यहाँ पे एक ही वैल्यू होगी 1 0, तो यहाँ पे एक ही पेयर हमको मिल पाएगा। तो अब आप काउंट कर लो टोटल नंबर ऑफ पॉसिबिलिटीज पेयर, 7 प्लस 5 12 प्लस 4 16 प्लस 2 18 प्लस 1 19। तो 19 ऐसे टोटल वेज हैं, पॉसिबिलिटीज हैं जिसपे ये बैट्समैन 25 रन सिक्योर कर सकता है इन डिफरेंट वेज में, ठीक है। आगे चलेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन। देयर आर 4 लेटर्स एंड 4 एनवेलप्स। देखो लेटर्स की बात करें, लेटर्स एंड एनवेलप्स, ठीक है। कह रहे हैं 4 लेटर्स है, 4 एनवेलप्स हैं, एंड एग्जैक्टली 1 लेटर इज टू बी पुट इन एग्जैक्टली 1 एनवेलप विद द करेक्ट एड्रेस। लाइक फॉर एग्जांपल L1 L2 L3 L4 आर 4 लेटर्स एंड E1 E2 E3 E4 आर 4 एनवेलप्स। अब क्या कह रहे हैं, एक लेटर एक ही एनवेलप में जाएगा। इफ द लेटर्स आर रैंडमली इंसर्टेड इनटू द एनवेलप्स देन कंसीडर द, अब कह रहे हैं रैंडमली हमने डाल दिया। अब देखो इट इज पॉसिबल दैट एग्जैक्टली 1 लेटर गोज इनटू अ इनकरेक्ट एनवेलप। कह रहे हैं ऐसा पॉसिबल है कि एक लेटर गलत एनवेलप में चले गया, मान लो L1 चले गया E2 में। लेकिन आप एक बात समझो, अब L2 को अगर E2 में जाना था तो L2 भी तो किसी गलत एनवेलप में ही जाएगा। तो या तो देखो पॉसिबिलिटी क्या है, या तो 0 इनकरेक्ट एनवेलप्स, मतलब 0 इनकरेक्ट मैचिंग हो, या फिर 2 इनकरेक्ट हो जाएंगे, ऑड में नहीं हो पाएगा, या फिर चारों के चारों इनकरेक्ट होंगे। ऐसा नहीं हो सकता कि एक इनकरेक्ट हो या 3 इनकरेक्ट हो, या तो सारे इनकरेक्ट होंगे, या 2 गलत होंगे 2 सही होंगे, या फिर कोई सारे सही होंगे, ये पॉसिबिलिटी। तो फर्स्ट यहाँ पे गलत हो जाता है। आगे देखो, देयर आर ओनली 6 वेज इन विच ओनली 2 लेटर्स कैन गो इनटू द करेक्ट एनवेलप्स। अब बात समझो, वी हैव 4 लेटर्स और हमें 2 लेटर्स, मतलब बेसिकली 4 लेटर से 4 एनवेलप हैं, तो हमें 2 सिलेक्ट करने हैं, 2 सही और 2 गलत। तो फॉर्मूला इसका वैसे बन जाएगा 4C2। तो इसका फॉर्मूला होता है 4 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल। तो ये हो जाएगा 4 इंटू 3 अगर आपने कर रखा है, तो यहां से 6 वेज हैं और ये बिल्कुल सही है। अदरवाइज आप वैसे भी देखना चाहोगे कि मान लीजिए कि अगर ये 2 गलत गए हैं तो आप उस तरीके से भी, बट वो फायदा नहीं है। बेटर है कि हम कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला यूज करें, दैट वी हैव 4 लेटर्स, वी हैव टू सिलेक्ट द 2 करेक्ट मैचिंग, ठीक है। तो 4C2 के थ्रू हम इसको इजीली सॉल्व कर सकते हैं। सो ओनली 2 इज करेक्ट, ऑप्शन बी यहाँ पे सही हो जाता है। आगे चलेंगे, हाउ मेनी डिस्टिंक्ट 8 डिजिट नंबर्स कैन बी फॉर्म्ड बाय रीअरेंजिंग द डिजिट्स ऑफ द नंबर। एक नंबर है 1 1 2 2 3 3 4 4, इसमें 8 डिजिट्स हैं और सारी डिजिट्स 2 बार रिपीट हो रही हैं। 2 और 4 आपकी इवन डिजिट्स हो गई हैं और 1 और 3 आपकी ऑड डिजिट्स हो गई हैं। ये 4 डिजिट्स हैं, ये भी 4 डिजिट्स हैं, जैसे 1 2 बार आ रहा है, 3 2 बार आ रहा है, ऐसे, ठीक है। सच दैट ऑड डिजिट्स ऑक्यूपाई ऑड पोजिशंस एंड इवन डिजिट्स ऑक्यूपाई इवन पोजिशंस। तो कह रहे हैं ऐसे बताओ कि ऑड डिजिट्स ऑड पोजीशन पे और इवन डिजिट्स इवन पोजीशन पे। अब एक बात समझो कि ऑड पोजीशंस कितनी है इस नंबर में, 8। अगर कोई एक 8 डिजिट नंबर है तो उसमें 4 ऑड पोजीशंस होंगी और 4 इवन पोजीशंस होंगी, है ना। अब इन 4 ऑड पोजीशंस को 4 जगह भरना है तो 4 फैक्टोरियल, लेकिन 2 ऑड डिजिट्स 2 बार रिपीट हो रही हैं, तो डिवाइड बाय 2 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 2 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई बाय। इवन की बात करें, अगेन 4 प्लेसेस फिल करनी है हमको, 4 इवन प्लेसेस फिल करनी है, लेकिन यहाँ पे भी 2 बार रिपीट हो रहे हैं, तो डिवाइड बाय 2 फैक्टोरियल 2। देखो 2 फैक्टोरियल 2 ही होता है, तो कभी कभी हम डिवाइड बाय 2 भी लिख सकते हैं 2 फैक्टोरियल की जगह पे, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, 4 इंटू 3 डिवाइड बाय 2 इंटू, इसको सॉल्व कर सकते हैं आप, तो ये हो जाएगा 6 इंटू 6 इज इक्वल टू 36। तो 36 ऐसे नंबर्स हैं जो हम फॉर्म कर सकते हैं एज पर द अबव कंडीशन। ऑप्शन सी वुड बी द
करेक्ट आंसर। आगे चलेंगे, ABCD इज अ स्क्वायर, एक स्क्वायर है, लेट मी ड्रॉ अ स्क्वायर, ABCD एक स्क्वायर है, 1 पॉइंट ईच ऑन AB एंड CD, कह रहे हैं एक पॉइंट AB और CD पे, एंड 2 डिस्टिंक्ट पॉइंट्स ऑन BC एंड DA आर चोजन। ये मान लो ये 6 पॉइंट्स मैंने बना दिए, दीज आर द 6 पॉइंट्स। हाउ मेनी डिस्टिंक्ट ट्राइंगल्स कैन बी ड्रॉन यूजिंग 3 पॉइंट्स एज वर्टिसेस आउट ऑफ दिस, कितने डिस्टिंक्ट ट्राइंगल हम बना सकते हैं? देखो ये 6 पॉइंट्स हैं। देखो ट्राइंगल बनाने के लिए एक कंडीशन है कि तीनों पॉइंट्स कोलिनियर नहीं होने चाहिए, कि तीनों पॉइंट्स एक ही लाइन में होंगे तब ट्रायंगल नहीं बन सकता, बट यहाँ पे 3 पॉइंट्स एक लाइन में नहीं है, तो हम डायरेक्टली यहाँ पे फॉर्मूला यूज कर सकते हैं कॉम्बिनेशन का कि देयर आर 6 पॉइंट्स एंड वी नीड 3 पॉइंट्स टू मेक अ ट्रायंगल, और डिस्टिंक्ट है इसलिए कॉम्बिनेशन यूज कर रहे हैं, है ना। तो 6C3 तो 6 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 3 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 3 फैक्टोरियल, तो हो जाएगा 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 फैक्टोरियल, और 3 फैक्टोरियल से 3 फैक्टोरियल कट हो जाएगा एक, तो क्या बचेगा 6 इंटू 5 इंटू 4, 3 फैक्टोरियल क्या होगा 3 इंटू 2, तो 3 इंटू 2 6, तो क्या बचा 20। तो 20 ऐसे ट्राइंगल्स हम फॉर्म कर सकते हैं 3 पॉइंट्स को यूज करके आउट ऑफ दीज 6। आई होप दिस इज क्लियर। तो ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। आगे चलेंगे, अ बॉक्स कंटेन्स 14 ब्लैक बॉल्स, 14 ब्लैक बॉल्स हैं, ब्लू बॉल्स कितने हैं 20, देन ग्रीन are 26, yellow are 28 and red are 38। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन देख लेते हैं। और अच्छा वाइट भी हैं, तो these are the 6 colors, these are the 6 different color balls। Consider the smallest number n, अच्छा टोटल भी आप निकाल सकते हो 40 60 60 एंड दिस विल बी 114, तो इसका टोटल आ जाएगा 180 इज द टोटल नंबर ऑफ बॉल्स, ठीक है। द स्मॉलेस्ट नंबर n सच दैट एनी n बॉल्स drawn from the box randomly must contain one full group of at least one color is 170। कह रहे हैं कि आपको अगर आप जैसे चाहते, अगर आप इफ यू वांट कि कम से कम एक कलर की, एटलीस्ट वन कलर की सारी बॉल्स तो आ जाएं, बाकी सबकी सारी चाहे ना आए लेकिन कम से कम एक कलर की सारी बॉल्स आ जाएं, तो मिनिमम कितनी बॉल्स हमको पिक करनी पड़ेंगी तब ये फुलफिल होगा। 180 टोटल नंबर ऑफ बॉल्स हैं। अब देखो हम हमेशा वर्स्ट केस सिनेरियो लेके चलेंगे कि मान लो हमारे पास अलग अलग बॉल्स आती हैं, हर बार एक साथ एक सारी बॉल्स नहीं आ रही हैं, तो हमें तो वर्स्ट केस सिनेरियो लेके चलना पड़ता है। तो यहाँ पे क्या है कि कम से कम एक पूरा ग्रुप आ जाए, है ना, एक हमारा पूरा ग्रुप आ जाए। मेरी एक बात समझना, 175 बॉल्स अगर आप पिक कर लोगे तो कितनी बचेंगी 5 बचेंगी, जबकि टोटल नंबर ऑफ बॉल्स जो डिफरेंट कलर्स हैं वो 6 कलर्स की हैं। तो 175th बॉल जब आप पिक कर लोगे तो कम से कम एक ग्रुप कोई ना कोई पूरा आ जाएगा, क्योंकि उसके बाद 5 ही बॉल्स बचेंगी ना। अब एक बात समझो, 5 बचेंगी तो 5 वो अगर अलग अलग कलर की भी हुई, बची हुई 5, तो कम से कम एक ग्रुप तो हमने पूरा पिक कर लिया होगा। तो 175 अगर हम पिक करेंगे तो वी आर श्योर कि कम से कम एक कलर की बॉल्स हमने सारी की सारी पिक कर ली हैं। अब वो ब्लू भी हो सकता है, ब्लैक भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, वो दैट इज नॉट आवर एरिया ऑफ कंसर्न, दैट इज नॉट द पॉइंट ऑफ कंसर्न, ठीक है, बात समझ गए हैं। तो फर्स्ट स्टेटमेंट जो है वो बिल्कुल ही सही स्टेटमेंट है। आगे देखते हैं सेकंड, the smallest number m such that any m balls drawn from the box must contain at least one ball of each color। अब यहाँ पे कह रहे हैं कितनी मिनिमम बॉल्स पिक करें so that we are sure कि हर एक कलर की कम से कम एक बॉल तो है, कम से कम एक बॉल तो है। अगेन वर्स्ट के सिनेरियो लेके चलेंगे, सबसे कम बॉल्स किसकी हैं, ब्लैक की हैं। तो अगर मैं 180 में से 14 माइनस कर दूं तो आता है 166। तो मान लो कि उसने अगर सारी की सारी पहले 166 ये सारी बॉल्स पिक कर ली, लेकिन 167th बॉल तो फिर ब्लैक कलर की होगी ही होगी। तो बेसिकली मिनिमम अगर हम 167 बॉल्स पिक कर लेंगे देन वी आर श्योर कि हमने सारे ही कलर्स कम से कम एक ना एक बार तो पिक कर रखे हैं, देन वी विल बी श्योर अबाउट दैट, ठीक है। तो ये भी बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, बोथ 1 and 2 आर एब्सोल्युटली करेक्ट। आगे चलते हैं। अगेन तो 2023 में बहुत क्वेश्चंस आए थे पीएनसी परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन से। व्हाट इज द नंबर ऑफ सिलेक्शंस ऑफ 10 consecutive things out of 12 things in a circle taken in a clockwise direction। अब बेसिकली कहना क्या चाह रहे हैं, अगर आप एक क्लॉक ही बना लो, यहाँ पे आपको क्लियर हो जाएगा। क्लॉक में क्या होते हैं, देयर आर 12 नंबर्स, ठीक है, इस तरीके से 12 नंबर्स हैं। इनको नंबरिंग भी आप दे सकते हो, x1 x2 x3 या 1 2 3 कुछ भी दे सकते हो, ठीक है। तो कह रहे हैं कि आपको इनमें से 10 चीजें पिक करनी है आउट ऑफ 12 इन अ क्लॉकवाइज डायरेक्शन, कंसेक्यूटिव भी होनी चाहिए। तो एक तो हो गया, आप x1 से शुरू करके क्लॉकवाइज डायरेक्शन में x10 तक पिक कर लो, दिस इज वन सिलेक्शन। द सेकंड सिलेक्शन कुड बी x2 टू x11, देन x3 टू x12,
ठीक है, इस तरीके से आप देखोगे x4 टू वापस x1, 4 से स्टार्ट करके वापस 1 पे तो आ ही जाओगे। ठीक है, रिपीट होगा, सर्कल है क्योंकि। तो इस तरीके से आप 12 ऐसे सिलेक्शन, लास्ट होगा x12 से लेके 12 पे आ जाओगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो x10 तक जाओगे बेसिकली इस तरीके से कुछ। ठीक है, तो पॉइंट आप समझने की कोशिश करो, या 12 एक होगा तो 9 हो जाएगा एक्चुअली, ये 12 को भी काउंट करोगे ना तो x9 हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से हम 12, देयर आर 12 वेज, 12 सिलेक्शंस, इसमें कोई रिपीटिशन भी नहीं होगी बिकॉज x12 के बाद वापस x1 आ जाएगा तो फिर रिपीटिशन हो जाएगी। तो 12 सिलेक्शंस आर पॉसिबल, ऑप्शन सी जो है यहां पर हमारा सही आंसर हो जाएगा। ठीक है जी, आगे चलते हैं। आई होप सभी को समझ में आ रहा है। आई एम ट्राइंग टू सिंप्लीफाई। इन एन एग्जाम द मैक्सिमम मार्क्स फॉर ईच ऑफ द 4 पेपर्स, 4 पेपर्स हैं PQRS, और मैक्सिमम मार्क्स जो हैं वो हैं 100 हर एक पेपर के। अब बोल रहे हैं मार्क्स स्कोर्ड बाय अ स्टूडेंट आर इन इंटीजर्स, अ स्टूडेंट कैन स्कोर 99 इन डिफरेंट कैन स्कोर 99 इन एन डिफरेंट वेज। तो एक बच्चे के अगर 99% आए हैं कंबाइंड, देखो कंबाइंड ये 400 नंबर का पेपर हो गया, और इसका 99% निकालोगे तो आएगा 396। तो बेसिकली आपसे पूछ ही रहे हैं कि 396 नंबर स्कोर करने के लिए हाउ मेनी पॉसिबल वेज, डिफरेंट वेज आर देयर। तो n की वैल्यू आपसे पूछ रहे हैं, नंबर ऑफ वेज की वैल्यू आपसे पूछ रहे हैं। तो इसमें आप एक चीज ये भी समझ सकते हो कि 396 मींस जैसे 400 में से 396 माइनस करोगे तो 4 नंबर्स, 4 मार्क्स आर लेस। तो इसकी पॉसिबिलिटी क्या है, मतलब ये 4 को बनाने की पॉसिबिलिटी क्या है अगर मैं PQRS को लिखता हूं, या फिर आप ये समझो कि एक तो पॉसिबिलिटी है कि एक सब्जेक्ट में 4 नंबर कम आए और बाकी सब में फुल नंबर आ जाए। ठीक है, एक हो गया कि एक में 3 नंबर कम है, एक में 1 नंबर कम है और 0 0। ठीक है, अभी ऑर्डर की बात नहीं कर रहा मैं, एक ही हो सकता है कि 2 नंबर कम है 2 में और 0 0। तो इस तरीके से ही आपकी पॉसिबिलिटीज बनेंगी। लेकिन आप ये समझो कि ये जो 4 0 0 है, ये इट इज पॉसिबल इन 4 डिफरेंट वेज, बिकॉज किसी के भी 4 हो सकते हैं कम, किसी भी सब्जेक्ट में किसी में भी 0 कम हो सकते हैं, तो वो 4 डिफरेंट वेज हैं। और यहाँ पे 0 रिपीट हो रहा है 3 टाइम्स, तो 4 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 3 फैक्टोरियल, तो यहाँ पे आ जाएगा आपकी वैल्यू 4, इसकी वैल्यू आ गई 4। सिमिलरली अगर 3 1 0 0 की बात करें, ठीक है, इस तरीके से इस क्वेश्चन को अप्रोच करना है। तो यहाँ पे भी 4 डिफरेंट वेज हैं, लेकिन 0 2 बार रिपीट हो रहा है, तो 2 फैक्टोरियल से डिवाइड करोगे तो ये आ जाएगा आपका 6 डिफरेंट वेज यहाँ पे निकल कर आएंगी। देन यहाँ पे देखोगे अगेन 4 फैक्टोरियल है, लेकिन 2 भी 2 बार रिपीट हो रहा है, 0 भी 2 बार रिपीट हो रहा है, तो 2 फैक्टोरियल से 2 बार डिवाइड करोगे, सो दिस वुड बी, अच्छा यहाँ पे 12 आएगा, दिस इज माई मिस्टेक। यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पर जो है यहाँ पे वैल्यू आएगी 6। और क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है कि मान लो चारों ही सब्जेक्ट्स में एक एक नंबर हमारा कम हो जाए। ऐसा भी हो सकता है कि चारों में ही हमारा वी हैव 1 1 मार्क्स लेस, तो ऐसा एक ही केस होगा, ऐसा तो एक ही केस निकल कर आएगा। तो इस तरीके से हमें इस क्वेश्चन को अप्रोच करना है। आई होप आपको थोड़ा थोड़ा एक आइडिया लग रहा होगा कि यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, कि 4 मार्क्स अगर लेस हैं तो उसको करने के क्या डिफरेंट वे हो सकते हैं। अच्छा, अभी एक चीज हमने मिस कर दी है कि 2 1 1 0, ये भी एक पॉसिबिलिटी है। ये केसेस हैं सारे जो मैं सर्कल कर रहा हूँ, इनसर्कल कर रहा हूँ, इनको हम काउंट करेंगे अभी। 1 पॉसिबिलिटी कि चारों में एक एक कम हो, ऐसा तो एक ही केस है ना, इसमें पॉसिबिलिटीज नहीं हो पाएंगी। अब मान लो 2 1 1 0, तो यहाँ पे 4 फैक्टोरियल और 1 2 बार रिपीट हो रहा है डिवाइड बाय 2 फैक्टोरियल, तो यहाँ पे भी 12 आ जाएगा। तो बात समझ पा रहे हैं आप लोग? ठीक है, तो अब ये यही पॉसिबल सारे केस है। अब काउंट कर लो, 4 + 12 16 + 6 22 + 1 23 + 12 35, तो 35 डिफरेंट वेज, देयर आर 35 डिफरेंट वेज in which the student can score 99% marks। ठीक है जी, आगे चलते हैं। Another question from 2023, a flag has to be designed with 4 horizontal stripes using some or all of the colors red, green and yellow। एक फ्लैग है जिसमें 4 स्ट्राइप्स हैं इस तरीके से adjacent to each other, और हमारे पास कलर्स लेकिन 3 ही हैं, रेड, ग्रीन एंड येलो। ठीक है, क्या बोल रहे हैं, व्हाट इज द नंबर ऑफ डिफरेंट वेज इन विच दिस कैन बी डन सो दैट नो 2 एडजेसेंट स्ट्राइप्स हैव द सेम कलर। 2 एडजेसेंट स्ट्राइप्स का कलर सेम नहीं होना चाहिए। तो ये मान लो फर्स्ट स्ट्राइप, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, ऐसा मैं हॉरिजॉन्टली लिख रहा हूं समझने के लिए कि मान लो अब फर्स्ट स्ट्राइप की बात करते हैं, इट कैन बी एनी कलर, ये रेड, ग्रीन, येलो कुछ भी हो सकता है मान लो। ठीक है, तो इट हैज 3 पॉसिबिलिटीज, लेकिन जो नेक्स्ट होगा ना इसके एडजेसेंट होगा, उसके लिए 2 ही पॉसिबिलिटीज हैं। इट कैन नॉट हैव द सेम कलर एज द फर्स्ट वन, तो 2 ही पॉसिबिलिटीज हैं। इससे एडजेसेंट जो नेक्स्ट है उसके पास भी 2 पॉसिबिलिटीज हैं, बिकॉज यहां जो कलर फिक्स हो गया
वो कलर यहां नहीं हो सकता, और कोई कलर हो सकता है, बिकॉज नो टू एडजेसेंट स्ट्राइप्स हैव सेम कलर। सिमिलरली इसके बगल वाले जो स्ट्राइप होगा दैट ऑल्सो विल हैव टू पॉसिबिलिटीज। तो 3 इंटू 2 6 इंटू 2 12 इंटू 2 24। तो 24 डिफरेंट वेज आर देयर in which you can arrange the stripes in the flag. So option C 24 is the correct answer. ठीक है जी, आगे चलते हैं. The last question for today. There are 5 person P, Q, R, S and T, each of whom has to be assigned one task. 5 लोग हैं, हर किसी को एक टास्क असाइन करना है. अब क्या लिखा है? Neither P nor Q can be assigned task 1. P और Q को टास्क 1 जो है नहीं मिल सकता. ठीक है, टास्क 1 इनको नहीं मिल सकता, और टास्क 2 जो है वो इन दोनों में से किसी को मिलेगा. ठीक है, अब क्या बोल रहे हैं, और सबको एक अलग अलग टास्क मिलना है. तो इन हाउ मेनी वेज, ये हम कितने वेज में कर सकते हैं. अब देखो एक बात समझो, एक टास्क 1 है, टास्क तो एक्चुअली 5 होंगे क्योंकि 5 लोग हैं. ठीक है, तो टास्क जो है T1 T2 T3 T4 T5. लेकिन यहाँ पे दो केस क्या बन सकते हैं, हमारा स्टार्टिंग पॉइंट क्या हो सकता है इस क्वेश्चन में, कि या तो R के पास टास्क 2 होगा या S के पास. तो केस 1 ले लो कि R के पास टास्क 2 है, केस 2 ले लो S के पास टास्क 2 है. अब एक बात समझना, टास्क 1 किसके पास होगा? टास्क 1 PQ के पास तो हो नहीं सकता. तो जब R के पास टास्क 2 है तो टास्क 1 या तो S या फिर T, और जब S के पास टास्क 2 है तो टास्क 1 या तो R और या तो T. तो बेसिकली यहाँ पे देयर आर टू पॉसिबिलिटीज. ये केस 1 ले लो, ये केस 2 ले लो, ये तो एक ही पॉसिबिलिटी है तो फिक्स ही कर दिया हमने. अब आगे देखो T3. अब ये 3 टास्क बचे हैं, आप ये समझो, और 3 लोग बचे हैं. ठीक है, तो ये तो थर्ड टास्क है, ये किसी भी बचे हुए 3 लोगों को मिल सकता है, बिकॉज एक को टास्क 1 मिल गया, एक को 2 मिल गया, ये 3 लोगों को मिल सकता है यहाँ पे. देन टास्क 4 के लिए 2 लोग ही बचे हैं, तो एनी वन ऑफ द 2, और लास्ट के लिए एक ही बचा है. ठीक है, तो मल्टीप्लाई कर दो, 2 इंटू 1 2 इंटू 3 6 इंटू 2 12 इंटू 1 12. तो 12 केसेस यहाँ पर, और केस 2 क्या था कि अगर S के पास टास्क 2 हो तो यहाँ पे भी 12. तो दोनों का सम करेंगे. इन टोटल देर आर 24 पॉसिबल असाइनमेंट्स, 24 पॉसिबल वेज जिसमें हम ये टास्क अलॉट कर सकते हैं. केसेस दो हैं, दोनों केसेस में 12 पॉसिबिलिटीज हैं, तो टोटल 24 वेज और पॉसिबिलिटीज. आई होप दिस इज क्लियर. सो गाइज, दिस इज इट फॉर दिस वीडियो. आई विल बी कमिंग अप विद पार्ट 2 ऑफ दिस वीडियो सून, जहां पे हम और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन देखेंगे परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन के. इसके अलावा एज आई टोल्ड यू और डिफरेंट टॉपिक्स के मैं ऑलरेडी वीडियोस बना चुका हूं, लाइक नंबर सिस्टम, सीक्वेंस सीरीज, मेंसुरेशन, ज्योमेट्री, ठीक है, अलजेब्रा. वो वीडियोस आप जरूर जाके देखें, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा. इफ यू लाइक द वीडियो, डू हिट द लाइक बटन, सब्सक्राइब द चैनल, एंड इफ यू हैव एनी कमेंट, क्वेरी, सजेशन, फीडबैक, देन डू टेल मी in the comment section below. So I wish you all the very best. Goodbye, take care, and Jai Hind.